Okay. So mainly this first and follow rule you will be using in case you are using a predictive parser where you are not opting for backtracking, means whatever options is present there for a single non-terminal, like I have already told you, like suppose you have a production like this. Suppose you have a production like this, that A produces, suppose it is given B capital C oblique, suppose small e, like that. Suppose any production is given. Okay, so that means for this non-terminal which is present in the left hand side derivative A is having two possibilities for its expansion or for its derivation. Either you can replace this A with capital BC, or you can replace this with small c. Just wait for a second, I'm getting a call.
Okay, sorry for the inconvenience. Okay, so I'm going to the first function. So I told that in this case, in this production, A produces BC oblique CE when it is given. So that means for A, you can have more than two possibilities for derivation. So that means either you can replace this capital A with BC further in the next level, or you can replace this capital A with E. Okay. So what I mean to say, when you will calculate this first function, the tip is that you will always find out which is the non-terminal present in your left-hand side derivative. Only you will calculate the first function for that non-terminal. So that means here in this production, I can see three non-terminals are there, right? In capital A, B, C. But I will calculate only first of capital A here. First of capital A. I will find out. Okay. So for that, what should be the rule, and how to calculate first function for each of the non-terminals present in your production rule set, that also I will cover in today's lecture. Okay. So let me first write down what are the possible rules are there for your first function calculation. Okay. So function, this is the topic, first function. So rule number one. Rule one is saying that if rule one is if suppose the symbol is A, if this A, so A means here, don't think that I'm talking here only about non-terminal or talking about terminal. A is any symbol. So let me write any symbol here. Huh? Then it will be easier for you. Let's write delta. Okay. If delta is any symbol, it can be either terminal or it can be non-terminal. Huh? If delta is a terminal, then first of delta will be equal to delta itself. Okay, this is my rule number one. Means what I mean to say, suppose I am calculating here capital A produces, suppose I am calculating, huh? So here first of A will be equal to first of small a. Why I am writing small a? I am telling you that is equal to small a. So what is the meaning of this? What is the meaning of this? First function, whenever I am talking about first function, that means the production, the non-terminal, not talking about production, the non-terminal for which that production is made. So for non-terminal means here the production is made for the non-terminal capital A, because A is the node which you are planning to expand or which you are planning to derive in its next level, right? So that means A is that non-terminal for which this production is mentioned in your production rule set. Okay. So whenever you will calculate the first of A, so that means you have to see that in this production, which symbol is the one which is the leftmost symbol in its right hand side. So that means in this production, if I talk about this production, A produces BC. When I will calculate first of A, that means यहाँ पे हम लोग basically देख क्या रहे हैं कि A को जब expand करेंगे तो कंपाइलर को उसके लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा मिलेगा जो उसके राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में मौजूद है. सो उसके राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में मौजूद है बी और सी, उनमें से लेफ्ट मोस्ट कौन सा है? कैपिटल बी. So that means first of A will be equal to the value which you will get from first of capital B.
ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में जब हम लोग वॉच करेंगे या फिर स्कैन करेंगे तो वो सिंबल कभी कभी नॉन टर्मिनल होगा, कभी कभी टर्मिनल होगा। तो मेरे इस केस में ए प्रोड्यूसेस बीसी में राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है? कैपिटल बी। सो फर्स्ट ऑफ बी ही उसका वैल्यू प्रोवाइड करेगा और वो वैल्यू से आप फर्स्ट ऑफ ए को कैलकुलेट कर पाओगे। सो इसका मतलब है अगर मैं इस प्रोडक्शन को देखूं कि कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, तो मेरे पास सिंबल कौन सा है जिसको मैं अभी डिराइव करने वाली हूँ? वो है कैपिटल ए। हाँ, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए। अब फर्स्ट ऑफ ए जब मैंने एक्सपैंड करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ए के लिए जो प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है उसके राइट हैंड साइड में एक ही मात्र सिंबल है स्मॉल ए। ओके, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे लिख दिया फर्स्ट ऑफ ए। अगर मुझे कैलकुलेट करना है देन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए को। जो वैल्यू मुझे फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए से मिलेगा वो वैल्यू ही फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए का मेंबर होगा। तो इसके मुताबिक फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए, इस लॉजिक के मुताबिक मेरा रूल यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी सिंबल, मान लो कि यहाँ पे स्मॉल ए हम कैलकुलेट करें या फिर कैपिटल ए करें, जो भी सिंबल जिसका हम फर्स्ट फंक्शन निकाल रहे हैं वो सिंबल अगर डेल्टा है, मान लो कोई भी सिंबल डेल्टा है और वो डेल्टा अगर एक टर्मिनल निकला, अगर वो एक टर्मिनल निकला तो फर्स्ट ऑफ डेल्टा जब हम कैलकुलेट करेंगे वो खुद डेल्टा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा कौन है? डेल्टा इज नथिंग बट स्मॉल ए जिसका हम फर्स्ट फंक्शन निकाल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए मतलब ए इटसेल्फ। ओके, अब ये ए किसका मेंबर होगा? ये ए मेंबर होगा फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए का, क्योंकि ये ए कहाँ पे है? ए है इस प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे। सो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नॉन टर्मिनल बैठा हुआ है? कैपिटल ए। सो व्हेन आई विल कैलकुलेट दिस फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए, so that will be equal to first of small a because it is present in its leftmost, it is the leftmost symbol of the right hand side derivative of this production. So इसलिए first of small a को हम जब calculate करेंगे it will give me that terminal value itself. So terminal value यहाँ पे कौन है? क्या small a ही है, so वो small a ही first of a का member होगा। अच्छा, इसका इसका मतलब है कि अच्छा मैं पहले थोड़ा रूल मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी कि ये टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल के सहारे हम लोग कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट रूल विल बी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 is saying if your symbol delta is a non-terminal, delta is a non-terminal and your delta is producing a production, delta is having a production, let's say like this, delta produces small a and then suppose कोई भी symbol है capital B, capital C, कुछ भी है। okay, and in this case if I want to calculate of delta, first of delta मतलब function sign, हाँ, first of delta is equal to your first of your right hand side. So right hand side में कौन कौन है? Small a followed by capital B. This is the right hand side. So in this case A और B में, small a और capital B में सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है? लेफ्ट मोस्ट सिंबल है small a. So that means it will be equal to first of small a, which is equal to A itself. So यहाँ पे मैंने क्या दिखाया
कि आपके जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में मोर देन वन सिंबल्स प्रेजेंट है। प्रीवियस केस में क्या था, ओनली वन सिंबल वाज प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड, जबकि यहाँ पे आपने देखा कि राइट हैंड साइड में ए भी है, कैपिटल बी भी है। तो मुझे अगर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव डेल्टा का मुझे फर्स्ट फंक्शन निकालना रहा, विच इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर प्रेजेंट और लेफ्टमोस्ट मेंबर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, उसका फर्स्ट फंक्शन। सो इसलिए मैंने टोटल लिखा कि फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए फॉलोड बाय बी, लेकिन ए और बी में सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, स्मॉल ए, इसलिए वो कन्वर्ट हो गया फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए में, विच इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। ओके, अच्छा, अगर यही चीज यही प्रोडक्शन अगर इस टाइप से होता कि डेल्टा, मान लो कि प्रोडक्शन अगर इस टाइप से हो, डेल्टा produces suppose capital B, capital C, and in this case I want to calculate first of delta that is equal to first of BC, राइट हैंड साइड में है BC। ओके, सो इन B और C में सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है, B, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू फर्स्ट ऑफ B, दिस इज फर्स्ट ऑफ B में वो कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज दैट इज द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। सो मुझे उसके बाद कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, B के बाद C है, C के पास D है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई विल ओनली पिक अप द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। सो B और C में मैंने लेफ्ट मोस्ट सिंबल को पिकअप किया, तो उसका जो वैल्यूएशन होगा दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फर्स्ट ऑफ डेल्टा। ओके, सो मान लो कि फर्स्ट डेल्टा प्रोड्यूसेस BC, आपके पास एक प्रोडक्शन है और दूसरा प्रोडक्शन आपको दिया गया है उसी क्वेश्चन में, उसी प्रोडक्शन रूल सेट में, कि कैपिटल B प्रोड्यूसेस स्मॉल आई एंड कैपिटल C प्रोड्यूसेस स्मॉल g। सपोज ये प्रोडक्शन हमें दे दिया गया है, जिनमें से B का प्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि B प्रोड्यूसेस आई। सो इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ B को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ B को सॉल्व करेंगे मतलब फर्स्ट ऑफ I विल बी सॉल्व्ड। सो इफ फर्स्ट ऑफ I इज सॉल्व्ड, सो दैट विल गिव मी I। सो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ B इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ I आ गया, विच इज अ टर्मिनल वैल्यू। सो अभी हमने रूल नंबर 1 से देखा कि जो सिंबल जिसका हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, इफ दैट इज अ टर्मिनल, सो दैट विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वैल्यू इटसेल्फ। सो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू कौन है, स्मॉल आई। सो इसका मतलब स्मॉल आई विल कम इनटू द फर्स्ट फंक्शन सेट ऑफ B। सो फर्स्ट ऑफ B कितना वैल्यू निकला, स्मॉल आई। अब फर्स्ट ऑफ B में अगर स्मॉल आई निकला, यही वैल्यू आप फर्स्ट ऑफ डेल्टा को प्रोवाइड करोगे। सो फर्स्ट ऑफ डेल्टा में भी वही वैल्यू इनकॉर्पोरेट हो गया, विच इज आई। ओके, सो दिस इज योर रूल नंबर 2। अच्छा, रूल नंबर 3 ये बोल रहे हैं कि is saying that if your delta is a non-terminal, and it is having a production like this, the delta produces epsilon. Suppose it is providing you a epsilon production. Okay, in this case if you calculate first of delta,
First of delta, if you are calculating, that will be equal to epsilon itself. So what I mean to say कि अगर कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन कर रहा है कोई भी नॉन टर्मिनल डेल्टा, तो इसका अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे, so that will be giving me epsilon in the first function set. ओके, सो ये तीन रूल आपको याद रखने हैं कि अगर मेरा राइट हैंड साइड डेरिवेटिव पे टर्मिनल वैल्यू रहा तो उसके फर्स्ट फंक्शन में टर्मिनल वैल्यू आएगा. रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में मोर देन वन सिंबल्स है, चाहे वो टर्मिनल हो या फिर नॉन टर्मिनल हो, अगर वो टर्मिनल हुआ तो इसका मतलब लेफ्ट मोस्ट सिंबल इज अ टर्मिनल, so that will come into the first set of my left hand side derivative delta. मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ डेल्टा जब हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल मुझे मिलेगा फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए. फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए मतलब ए itself, so that a will be incorporated in first of delta. अच्छा, इसी का ऑल्टरनेटिव ये कहा गया, दिस इज द ऑल्टरनेटिव केस. ऑल्टरनेटिव मतलब अगर मेरा डेल्टा जो राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस कर रहा है वो राइट हैंड साइड पूरा बना हुआ है मोर देन वन नॉन टर्मिनल से, जैसे कि यहाँ पे बी और सी, more than one non-terminal is present here. Okay, so in this case if I want to calculate first of delta, so that will be equal to first of b, because b is the leftmost symbol. Okay, so first of b में अगर मुझे वैल्यू क्या है वो देखना है, then I will have to go to the production which is related to the b. So b का प्रोडक्शन कौन सा है कि कैपिटल B produces स्मॉल i. ओके, सो जब मैं फर्स्ट ऑफ बी को सॉल्व करूंगी फ्रॉम दिस प्रोडक्शन, आई विल गेट फर्स्ट ऑफ स्मॉल आई, बिकॉज स्मॉल आई इज प्रेजेंट इन इट्स राइट हैंड साइड. बी प्रोड्यूसेस ई में, राइट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट है? आई. सो आई विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ आई विच इज इक्वल टू द आई. सो अगर ये आई यहाँ पे फर्स्ट ऑफ बी में आ गया, सो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ बी इट विल गो टू फर्स्ट ऑफ डेल्टा. सो फर्स्ट ऑफ डेल्टा में भी वो मेंबर आ जाएगा. थर्ड रूल इज सेइंग दैट अगर कोई सिंबल एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनल जो है वो एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, देन आंख मूंद करके उसके फर्स्ट उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के फर्स्ट फंक्शन पे आप वन ऑफ द मेंबर यू कैन पुट एज अ एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन इट इज जनरेटिंग. ओके, सो इसके राइट हैंड साइड में जब आप स्ट्राइक करोगे, सो हु इज द फर्स्ट सिंबल और हु इज द लेफ्ट मोस्ट सिंबल? एप्सिलॉन. सो अगर ये एप्सिलॉन यहाँ पे मौजूद है तो फर्स्ट ऑफ डेल्टा में भी एप्सिलॉन विल कम एज वन ऑफ द मेंबर. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सो क्वेश्चन के लिए मान लो कि मैंने एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे सॉल्व किया है. तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे दिया गया कि कैपिटल E प्रोड्यूसेस TE डैश, देन E डैश प्रोड्यूसेस प्लस TE डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन, कैपिटल T प्रोड्यूसेस FT डैश, T dash produces star FT dash oblique epsilon, and F produces bracket of E oblique ID. Okay, this is the question given to you. यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिंबल्स के फर्स्ट फंक्शन निकालने हैं. अभी तक हमने फॉलो पढ़ा नहीं है, फॉलो फंक्शन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है. सो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फंक्शन. तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि जब आपको फर्स्ट फंक्शन निकालना रहेगा, you will always look at the left hand side of all the productions. जितने भी सारे आपके productions हैं, you will always look at the left hand sides. लेफ्ट हैंड साइड में जो जो नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है उन्हीं का सिर्फ आप फर्स्ट फंक्शन निकालोगे. ओके, सो इसका मतलब अलग से मुझे फर्स्ट ऑफ ई निकालना पड़ेगा, बिकॉज ई इज प्रेजेंट हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल नंबर 1. नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालना पड़ेगा because it is present in the production rule number 2. Then first of T निकालना पड़ेगा from production rule number 3. Then first of T dash निकालना पड़ेगा, and last first of F निकालना पड़ेगा, because these are the non-terminals present in each of these production rule set from production rule number 1 to production rule number 5. 5 आपके पास प्रोडक्शन दिए गए हैं 5 डिफरेंट सिंबल्स के लिए. सो वो सिंबल्स जरूर किसी प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, इसीलिए
उस नॉन टर्मिनल्स के लिए आपको अलग अलग से फर्स्ट फंक्शन निकालने पड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट फंक्शन निकालने के लिए आपको ये रूल दिमाग में रखना पड़ेगा जो अभी मैंने बताया कि जिस किसी का भी आप फर्स्ट फंक्शन निकाल रहे हो उसके राइट हैंड साइड में कौन सा सिंबल पहले आपको दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि आपको एक सिंगल टर्मिनल वैल्यू दिखे, हो सकता है कि आपको एक टर्मिनल वैल्यू फॉलोड बाय मेनी नॉन टर्मिनल वैल्यू दिखे, हो सकता है कि उसके राइट हैंड साइड में दोनों या फिर मोर देन वन नॉन टर्मिनल वैल्यू दिखे, या फिर हो सकता है कि एप्सिलॉन दिखे। ये 4 केस आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल टर्मिनल, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन, दो नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन, या फिर 2 से अधिक नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन, या फिर एप्सिलॉन। ये 4 में से कोई एक केस जरूर होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मेरे इस क्वेश्चन का कि E प्रोड्यूसेस कैपिटल T E डैश, तो ये कौन से कैटेगरी में पड़ रहा है? इसके राइट हैंड साइड में देखो आपके पास 2 नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है, राइट। तो इसका मतलब जब आप फर्स्ट ऑफ कैपिटल E निकालोगे तो इसका मतलब उसके राइट हैंड साइड में सबसे पहला सिंबल या फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा होगा? कैपिटल T, राइट। सो आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल T। सो लेट मी राइट दिस। मेरा प्रोडक्शन है दिस इज माय प्रोडक्शन फंक्शन। एक एक प्रोडक्शन करके दिखा रही हूँ। सो इसमें अगर मुझे फर्स्ट ऑफ कैपिटल E निकालना पड़ा, वही निकालना पड़ेगा भी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉन टर्मिनल रहता है उसी का हम लोग फर्स्ट फंक्शन निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ E मतलब E प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव है उसका सबसे पहला सिंबल कौन सा है, मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है। सो यहाँ पे देखा जाए तो T और E डैश 2 ही सिंबल है इस प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में, जिनमें से T जो है दैट इज द लेफ्ट मोस्ट सिंबल प्रेजेंट। ओके, सो आई विल राइट कि फर्स्ट ऑफ E अगर मुझे निकालना है, ओके, देन आई हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ कैपिटल T। क्यों? क्योंकि E के राइट हैंड साइड में TE डैश है। ओके, सो T इज द लेफ्ट मोस्ट वन, इसलिए मैंने लिखा फर्स्ट ऑफ T जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आप फर्स्ट ऑफ E के बारे में बोल नहीं सकते। ओके, अच्छा अब देखते हैं कि T का क्या प्रोडक्शन ऑलरेडी है। लेट्स सी। ओके, T का प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, T प्रोड्यूसेस FT डैश। ओके, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि this FT dash is one of the production here। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ T निकालने अगर हम गए तो T के प्रोडक्शन में उसके लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है? F। So I have to solve first what is the value of first of F। F का वैल्यू क्या है, राइट। अब F को जैसे ही निकालने गए तो F का प्रोडक्शन क्या डिराइव कर रहा है वो हमें देखना चाहिए। सो F के पास 2 प्रोडक्शन है, सो आई विल राइट बोथ। F प्रोड्यूसेस ब्रैकेट ऑफ E या फिर ID, दोनों ही वो जनरेट कर सकता है। ओके, सो आई विल राइट all the cases कि F can derive either bracket of E or it can derive ID। ओके, सो अगर मैं ये पहला प्रोडक्शन सॉल्व करती हूँ F प्रोड्यूसेस ब्रैकेट ऑफ E, सो इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा होगा ब्रैकेट ऑफ E का, बिकॉज दिस इज द राइट मोस्ट साइड। सो अगर राइट मोस्ट साइड को अगर देखा जाए तो सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल में कौन होगा? ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, सो आई विल कीप दैट कि फर्स्ट ऑफ F जब हम कैलकुलेट करने के लिए गए तो वहां पे सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल मुझे कौन सा मिला? ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, देन आई विल पुट अ कॉमा। व्हाई कॉमा? बिकॉज यहाँ पे F का 2 प्रोडक्शन आपको दिख रहा है, वन इज दिस वन फर्स्ट वन एंड अनदर इज सेकेंड कि F प्रोड्यूसेस ID। सो ये अभी भी बाकी है सॉल्व होना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ F अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस प्रोडक्शन से देन इट विल बी
first of id, and id is a constant or a literal or a terminal value. So in this case, this will give me that terminal value itself, means id. Okay. So यहाँ पे basically मुझे first of f में दो member मिला. One is your opening bracket and another is your id. ओके, बिकॉज f के पास दो पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों को हमने कॉमा कॉमा से लिख दिया. अच्छा, अब इसके अलावा e, t और f, यहाँ पे देखो एक ही लाइन पे आपने तीन चीज को सॉल्व किया है. फर्स्ट ऑफ e का क्या वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ t का क्या वैल्यू है, और फर्स्ट ऑफ f का क्या वैल्यू है. अभी भी आपके पास क्वेश्चन में और दो सिंबल आपको सॉल्व करने बाकी है. दो सिंबल कौन कौन से हैं? वन इज ई डैश, इसका प्रोडक्शन अभी तक आपने छुआ नहीं है, या फिर टी डैश, इसका भी ऑप्शन आपने छुआ नहीं है. ओके, सो दैट मीन्स आई शुड go ahead with this follow of first of e dash. Okay, so let me write this. This production में if I want to calculate first of dash, ऑफ ई डैश. तो फर्स्ट ऑफ ई डैश अगर हम निकालने गए तो ई डैश के डेरिवेशन में सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है? प्लस. सो आई विल गेट फर्स्ट ऑफ प्लस सिंबल, first of plus symbol which is equal to plus symbol itself, because here plus symbol is treated as an operator, so operator's meaning cannot be changed. It will be always fixed, always constant, so that is why it will be treated as a terminal value. Acha, from second production, if I think that what will be the value of first of e dash, then from second production I will get the epsilon value, isn't it? Because second production is an epsilon producer. This e is producing one epsilon. So if it is producing one epsilon, so that epsilon will be the member. Okay, तो इसका मतलब जब हम फर्स्ट ऑफ ई डैश निकाले, मेरे पास दो ऑप्शन आया, वन इज प्लस, अनदर इज एप्सिलॉन, फ्रॉम दिस टू डिफरेंट प्रोडक्शन. सो इसको एज ए होल हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि फर्स्ट ऑफ ई डैश इक्वल टू एप्सिलॉन कॉमा प्लस. ओके, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही आपके पास वैलिड ऑप्शन है. सिमिलरली क्वेश्चन में और एक नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है जिनको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, दैट इज टी डैश प्रोड्यूसेस स्टार एफ टी डैश. ओके, ऑब्लिक एप्सिलॉन. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो लास्ट प्रोडक्शन बाकी है, विच इज टी डैश प्रोड्यूसेस स्टार एफ टी डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन. सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑफ टी डैश विच इज इक्वल टू उसके राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है उसका फर्स्ट फंक्शन. सो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है? एस्ट्रिक्स. सो आई विल राइट फर्स्ट ऑफ एस्ट्रिक्स फ्रॉम दिस प्रोडक्शन. द फर्स्ट सिंबल जहाँ पे वो टकराया है, दैट इज योर एस्ट्रिक्स, राइट? सो आई विल राइट फर्स्ट ऑफ एस्ट्रिक्स from this production, and from this production I can easily say that first of t dash will be equal to first of t dash will be equal to epsilon, because it's an epsilon producer, that t dash, right? So अगर वो epsilon produce कर रहा है तो हम directly हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि union first of epsilon. मतलब ये कौन कौन सा वैल्यू देगा? वन इज एस्ट्रिक्स और दूसरा है एप्सिलॉन.
So both the options you have to take. Like here, first of E dash में जैसे both the option you have taken, वैसे ही first of T dash में भी आपको both the options लेने पड़ेंगे. Okay, so इसको अगर हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में लिखे, जिसमें सिंबल रहेंगे, कौन कौन से सिंबल है? कैपिटल ई, ई डैश, टी डैश, एफ, ई डैश, देन टी डैश, एफ. तो उसका अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे बगल में रखते हुए चले, देन फर्स्ट ऑफ ई में हमें क्या वैल्यू मिला था? When I have calculated first of E, I have got opening bracket and ID, right? So I will put these two values in the table. Okay. फर्स्ट ऑफ ई डैश में क्या वैल्यू हमें मिला? फर्स्ट ऑफ ई डैश में ओनली, not only, two things we have got, epsilon as well as plus, right? So these two will be the member of first of E dash. Next, first of T. फर्स्ट ऑफ टी में आपको क्या मिला है? फर्स्ट ऑफ टी में भी वही सेम वैल्यू आपको मिला है, विच इज ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी. सेम वैल्यू आई हैव गॉट फॉर फर्स्ट ऑफ एफ. देखो फर्स्ट ऑफ एफ में भी वही वैल्यू मिला है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी. अच्छा, फर्स्ट ऑफ टी डैश में अभी हमें क्या मिला है? एस्ट्रिक्स एंड एप्सिलॉन. सो आई विल टेक दैट. Twice, the first function of every non-terminal present in my rule set are ready. Okay. Now, फर्स्ट फंक्शन जैसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में देखने के बाद जो भी नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, उसके राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल है उसका हम लोग फर्स्ट फंक्शन निकालते हैं यूजिंग द रूल, 3 रूल्स, राइट? वैसे ही हमें फॉलो फंक्शन भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो फॉलो फंक्शन हम जब निकालेंगे तो फॉलो फंक्शंस के रूल थोड़े से क्रिटिकल है. व्हाई क्रिटिकल? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे देयर यू कैन हैव मोर देन 2 रूल्स टू बी अप्लाइड. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द फॉलो फंक्शन रूल. तो फॉलो फंक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि समवन व्हिच इज फॉलोइंग अदर वन, राइट? तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, क्या कि कोई भी प्रोडक्शन रूल हमें जब दिया जाएगा, सो उस प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड में जितने भी नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है, केयरफुली सुनना, राइट हैंड साइड में किसी भी प्रोडक्शन के जितने भी नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है उनका हम लोग फॉलो फंक्शन निकालेंगे, उन नॉन टर्मिनल्स का हम लोग फॉलो फंक्शन निकालेंगे. और उनका जब हम लोग फॉलो फंक्शन निकालेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि उस सिंबल के बाद वाला सिंबल कौन सा है, मतलब राइट हैंड साइड नेबर कौन सा है, हु इज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर सिंबल. ओके, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यही क्वेश्चन को देख लेते हैं. यहाँ पे मेरे पास सिंबल है टी और ई डैश, हाँ, राइट हैंड साइड में. तो अगर हम फॉलो ऑफ टी निकालेंगे, सो टी को फॉलो कर रहा है कौन कौन? कैपिटल ई डैश. लेकिन अगर हम फॉलो ऑफ ई डैश निकालेंगे, सो ई डैश को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी राइट हैंड साइड नेबर. ओके, सो लाइकवाइज यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें कि फॉलो ऑफ एफ, सो एफ को फॉलो कौन कर रहा है? टी डैश. अच्छा, अगर हम निकालना चाहें कि फॉलो ऑफ टी डैश, तो टी डैश को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी राइट हैंड साइड नेबर. ओके, सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल ई का अगर हम लोग फॉलो निकालना चाहें, सो ई को फॉलो कौन कर रहा है? उसके राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है क्लोजिंग ब्रैकेट. देखो क्लोजिंग ब्रैकेट, सो क्लोजिंग ब्रैकेट इज इट्स राइट हैंड साइड नेबर. इट इज एक्टिंग एज अ
टर्मिनल वैल्यू। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग फॉलो जब भी देखेंगे, सो फॉलो देखते वक्त हमें ऑलवेज दिमाग में रखना है कि जो सिंबल का हम फॉलो निकाल रहे हैं, दैट सिंबल वी हैव टू लुक इन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन। ओके, अच्छा, यहाँ पे सबसे फॉलो रूल में सबसे पहला रूल थोड़ा सा इजी है, और वो आपको याद भी रखना है कि जिस सिंबल का आप फॉलो निकाल रहे हो, अगर वो सिंबल, इफ दैट सिंबल इज अ स्टार्टिंग सिंबल, देन आंख मूंद करके आपको उस स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो सेट में डॉलर आपको वन ऑफ द मेंबर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मेरा रूल क्या बोल रहा है, इफ द सिंबल कैपिटल ए or delta, anything you can write, A is the start symbol, the start symbol, then dollar will be one of the member of follow of A। ठीक है, आंख मूंद करके डॉलर विल बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ फॉलो ऑफ ए। ठीक है, अगर ये ए स्टार्टिंग सिंबल हुआ तो मतलब ये डॉलर वाला रूल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन that symbol for which you are calculating the follow, that symbol is the starting symbol। मतलब जैसे मेरे इस प्रीवियस एग्जांपल में ई टी ई डैश टी डैश एफ 5 आपके पास सिंबल थे, लेकिन उनमें से स्टार्टिंग सिंबल कौन सा था, कैपिटल ई, क्योंकि यहाँ से ही आपका जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू हो रहा था, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ई को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ स्टार्टिंग सिंबल। तो अगर मुझे स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो निकालना है, मतलब मैं सपोज फॉलो ऑफ ई निकालूंगी, हाँ, सो इफ आई कैलकुलेट फॉलो ऑफ ई, देन उसका एक मेंबर डॉलर जरूर होगा। सो एक मेंबर मतलब मोर देन वन हो सकता है फॉलो मेंबर में आए, लेकिन चाहे कोई आए या ना आए, डॉलर विल ऑलवेज बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ योर फॉलो फंक्शन ऑफ योर स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग सिंबल इज ई, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि ई का फॉलो सेट में डॉलर विल बी वन ऑफ द मेंबर, वन ऑफ द, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वही मेंबर होगा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा, वन ऑफ द मेंबर डॉलर जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट रूल इज सेइंग, रूल नंबर 2, rule number 2 is saying if there is a grammar whose capital A produces delta, then suppose capital B, then suppose फिर से कोई एक symbol है theta, like that some symbols are there। okay, and for theta is not equal to epsilon. Theta is not equal to epsilon, then everything is present which is present in first of theta, that will be a member of follow of A, follow of B। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो कि एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें कैपिटल ए प्रोड्यूसेस डेल्टा, देन कैपिटल बी एंड
थीटा, ये राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो मैंने अभी कहा कि जब हम लोग फॉलो निकालते हैं, सो फॉलो निकालते वक्त हम लोग राइट हैंड साइड में कौन सा नॉन टर्मिनल है उसको देखते हैं। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एकमात्र नॉन टर्मिनल कैपिटल बी ही है, तो उसका हम लोग फॉलो निकालने वाले हैं। सो फॉलो ऑफ बी मतलब बी को कौन फॉलो कर रहा है। ओके, सो बी को फॉलो कर रहा है मतलब बी के राइट हैंड साइड नेबर कौन सा है। सो राइट हैंड साइड नेबर में मैंने देखा थीटा नाम का एक टर्मिनल बैठा हुआ है, विच इज नॉट एन एप्सिलॉन वैल्यू, इट्स समथिंग विच इज नॉन एप्सिलॉन। ओके, सो अगर जो टर्मिनल वैल्यू बैठा हुआ है दैट इज नॉट अ एप्सिलॉन वैल्यू, then whatever everything present in this symbols first function, that will be the member of follow of b. so मेरे बोलने का मतलब है, मान लो कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन है कि कैपिटल A produces small a, then capital B small c, सपोज ऐसा है, हाँ, और हम लोग निकालना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ कैपिटल B. so this is, sorry, not first, follow of capital B. So this is equal to first of who is following the B. So that means small c. Okay. So small c is a terminal value. So that means C itself will be the member of my follow of B, because C जो है वो B को फॉलो कर रहा है. So C का हम लोग फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे. फर्स्ट फंक्शन निकालने के बाद जो भी मेंबर आएगा वो मेंबर फॉलो ऑफ बी का मेंबर बन जाएगा. ओके, सो दिस इज रूल नंबर 2. अच्छा, अगर ऐसा केस होता कि मान लो रूल नंबर 3, if your production is this type, A produces delta and B, or oblique produces delta B theta. But in this case, theta is equal to epsilon. यहाँ पे not equal to मैंने लिखा था, थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन. मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग बी का फॉलो सेट निकालने वाले हैं, लेकिन बी का कोई राइट हैंड साइड नेबर या फिर कोई फॉलोअर नहीं है, और यहाँ पे बी का हम लोग फॉलो निकालने वाले हैं, और बी का जो फॉलोअर है थीटा, थीटा इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एन एप्सिलॉन वैल्यू. ओके, सो दिस इज द थर्ड केस कि बी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर बी को जो फॉलो कर रहा है दैट इज एन एप्सिलॉन जनरेटर. Okay, if this is the case, then in this case I will have to follow the rule that follow of E निकालने के लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव पे. तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव पे जो भी सिंबल रहेगा, जैसे मेरे इस केस में कैपिटल A है, सो फॉलो ऑफ A के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा फॉलो ऑफ B को. ओके, बिकॉज बी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर जो भी कर रहा है दैट इज एन एप्सिलॉन जनरेटर. सो इन दिस केस फॉलो ऑफ ए में जो जो मेंबर रहेंगे वो सारे फॉलो ऑफ बी में आ जाएंगे. ओके, लाइक मेरे इस केस में मान लो कि मेरे प्रीवियस एग्जांपल को ही हम लोग ले लेते हैं, जो मेरा ये वाला क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो निकालेंगे. टी डैश, ये करने के बाद ही मैं छोड़ दूंगी. टाइम हो चुका है, आई नो, but let me just finish this so that you can practice it at your home. ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, जब मैं फॉलो ऑफ यहाँ पे फॉलो फंक्शन निकालते वक्त आई विल हैव टू ऑलवेज सी एट द राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड में कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स है, टी है और ई डैश है. इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें इन दोनों के लिए फॉलो निकालना पड़ेगा. सो फॉलो ऑफ टी को ही पहले देख लेते हैं. टी और फॉलो ऑफ, अच्छा, फॉलो ऑफ टी मतलब
टी को कौन फॉलो कर रहा है। सो टी के राइट हैंड साइड में कौन बैठा हुआ है, ई डैश। सो इसका मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि टी कहाँ कहाँ राइट हैंड साइड में अपीयर कर रहा है जब हम फॉलो ऑफ टी निकाल रहे हैं। सो एक ये प्रोडक्शन है जहाँ पे टी राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, और दूसरा प्रोडक्शन ये है जहाँ पे टी आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। और दोनों केस में ही देखो टी को फॉलो कौन कर रहा है, ई डैश फॉलो कर रहा है। सो इसका मतलब फॉलो ऑफ टी निकालते वक्त आपको उसके राइट हैंड साइड में जो नेबर है उसके फर्स्ट फंक्शन के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ई डैश। मतलब फर्स्ट ऑफ ई डैश में जो जो मेंबर्स थे वो सारे आपके फॉलो ऑफ टी में आएंगे। ओके अच्छा, इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि जो फॉलोअर है ई डैश, क्या वो एप्सिलॉन जनरेटर है। अगर वो एप्सिलॉन जनरेटर हुआ तो इसका मतलब आपको थर्ड रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड रूल क्यों अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली अगर हम ई डैश को यहाँ पे एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते हैं तो इसका मतलब कैपिटल टी को कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो अगर फॉलो कोई कर नहीं रहा है इसका मतलब फॉलो ऑफ टी निकालने के लिए उसे उसके लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली मेरा दो रूल अप्लाई होंगे। दो रूल क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ई डैश से मुझे कुछ मेंबर्स मिलेगा और फॉलो ऑफ ई से कुछ मेंबर मिलेगा। ओके अच्छा, इस केस में क्यों मैंने फॉलो ऑफ ई लिया, ये रूल नंबर 3 क्या बोल रहा था कि अगर जिस सिंबल का हम लोग फॉलो निकाल रहे हैं उसके बाद जो नेबर बैठा हुआ है अगर वो एप्सिलॉन जनरेटर है तो उस केस में उस सिंबल का फॉलो निकालने के लिए उसे उसके लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है कैपिटल ई, तो ई के फॉलो के ऊपर मुझे डिपेंडेंट होना पड़ा, इसलिए फ्रॉम द रूल 3 आई हैव टेकन दिस। ओके अच्छा, अब आप लोग को लगेगा कि यहाँ पे भी तो सेम चीज हो रहा है कि हम लोग जब फॉलो ऑफ टी निकाल रहे हैं तो रहा है ई डैश। सो इसका मतलब ई डैश को अगर एप्सिलॉन जनरेटर है तो यहाँ पे मुझे उसके लेफ्ट हैंड साइड ई डैश पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए, फॉलो ऑफ ई डैश पे। तो यहाँ पे मुझे फॉलो ऑफ ई डैश पे भी डिपेंडेंट होना चाहिए। ओके सो इस मतलब जब हम फॉलो ऑफ टी निकालेंगे तो मुझे सारे यहाँ पे मुझे फॉलो करने होंगे। वन इज कि फर्स्ट ऑफ टी डैश का वैल्यू, फॉलो ऑफ टी निकालना है मतलब हमें फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालना है जो मैंने अभी लिखा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड के फॉलो के ऊपर डिपेंडेंट होना है, मतलब फॉलो ऑफ ई निकालना है। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑफ ई डैश हमें टेबल से ही मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ई डैश का वैल्यू कितना था, एप्सिलॉन एंड अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर फॉलो में आपको मेंबर्स कलेक्शन कर रहे हैं फॉलो की नहीं आ जाए मतलब लेना चाहिए, फॉलो हम लोग वन ऑफ द मेंबर, और सेकेंड फॉलो ऑफ ई से कुछ मेंबर्स आएंगे। तो फॉलो ऑफ ई अभी तक हमने निकाला नहीं है, सो लेट्स कीप इट पेंडिंग कि जब हम फॉलो ऑफ ई निकाल लेंगे सो मुझे ये वाला फॉलो ऑफ टी भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब फॉलो ऑफ ई निकालने के लिए इसका मतलब मुझे यहाँ पे खोजना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलो ऑफ ई। फॉलो ऑफ ई मतलब ई को कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं। सो ई को फॉलो कर रहा है, देखो ई राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक ही बार आया है विच इज इन दिस प्रोडक्शन। सो इसका मतलब ई को फॉलो कौन कर रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट। सो इसका मतलब मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट एज वन ऑफ द मेंबर मिलेगा बिकॉज दैट इज द फॉलोअर ऑफ माय कैपिटल E, so I will get closing bracket and as your E डॉलर तो आंख मूंद करके लाना ही है, तो डॉलर विल बी वन ऑफ द मेंबर और उसके साथ साथ दूसरा कोई भी आ सकता है, तो जो कि यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है।
इसका मतलब ये दोनों मेंबर फॉलो ऑफ ई मेंबर जो है वो फॉलो ऑफ टी में आके जुड़ जाएंगे। सो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों मेंबर का भी प्रेजेंस जरूरी है। So I will keep this two here also. Okay. मैंने जब टोटल निकाला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलो ऑफ टी, सो फॉलो ऑफ टी में इसलिए तीन मेंबर आ गया। वन इज प्लस, अनदर इज क्लोजिंग ब्रैकेट, अनदर इज डॉलर। अच्छा, अब लेट्स कम टू द पार्ट फॉलो ऑफ ई डैश। फॉलो ऑफ ई डैश मतलब ई डैश को कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो देखो यहाँ पे ई डैश को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ई डैश को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सो अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको चुपचाप उसके लेफ्ट हैंड साइड के फॉलो के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि फॉलो ऑफ ई डैश के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है फॉलो ऑफ ई। वो जो मेंबर प्रोवाइड करेगा वही मेंबर मेरा फॉलो ऑफ ई डैश में आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज नियम लागू होता है, लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी वही ई डैश ही है। इसलिए हम लोग अलग से इसको नहीं लिखे हैं, हमने सिर्फ लिखा फॉलो ऑफ ई पे जो जो मेंबर होगा वही मेरे फॉलो ऑफ ई डैश पे आ जाएगा। तो इसके मुताबिक फॉलो ऑफ ई पे ऑलरेडी क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर है। सो दीज टू विल कम एज अ मेंबर ऑफ फॉलो ऑफ ई डैश। ओके। अच्छा, नेक्स्ट follow of T dash. Of T dash. फॉलो ऑफ टी डैश जब हम निकालेंगे फिर से हमें देखना पड़ेगा कि टी डैश इज अपियरिंग वेयर एट द राइट हैंड साइड। सो टी डैश इज अपियरिंग once here at the right hand side and second is here at the right hand side, and no one is following your t dash. So you have to dependent on the left hand side derivative के follow function के ऊपर. So follow of t dash will be dependent on follow of t because t is in its लेफ्ट हैंड साइड, और इसके मुताबिक फॉलो ऑफ टी डैश पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो फॉलो ऑफ टी ऑलरेडी आपने निकाल के रखा है। सो दिस इज योर फॉलो ऑफ टी, these members will come in the follow of t dash. ओके, नेक्स्ट जब हम लोग निकालेंगे कि फॉलो ऑफ f, we have to see where this f is appearing at the right hand side. f is appearing only once here, यहाँ पे राइट हैंड साइड में वो अपीयर कर रहा है। सो इस एफ को फॉलो कर रहा है कौन, टी डैश। ओके, सो यहाँ पे आपको फिर से दो रूल अप्लाई करने के पड़ेंगे। वन इज कि टी उसको फॉलो कर रहा है मतलब उसके फर्स्ट फंक्शन के मेंबर, सो फर्स्ट ऑफ टी डैश के मेंबर, उसके साथ साथ टी डैश इज एन एप्सिलॉन जनरेटर। ओके, सो टी डैश एप्सिलॉन जनरेटर है, इसलिए इसका मतलब एफ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सो एफ नहीं कर रहा है मतलब एफ को अपने लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव के फॉलो के ऊपर भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पे फॉलो ऑफ भी उसे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके, सो फ्रॉम दिस टू अगर मैं कलेक्शन करूं वैल्यू को कि फर्स्ट ऑफ टी डैश में कौन कौन से मेंबर है, ओनली नॉन एप्सिलॉन मेंबर। हाँ, so first of t dash पे member है non epsilon member only asterisk. Okay, so I will get asterisk as one my member, और follow of t dash में ये तीन member already हमें मिल चुका है तो ये तीन भी आ जाएंगे। These four will come in the follow f. तो इन्हीं को हम लोग टेबल में लिख देते हैं कि फॉलो ऑफ एफ में कौन कौन से मेंबर आया, एस्ट्रिक्स प्लस ब्रैकेट एंड डॉलर। फॉलो ऑफ टी डैश में मेंबर आया प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर। नेक्स्ट फॉलो ऑफ ई में आया क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर। यहाँ पे हमने एक लिख के रखा ही था, यहाँ पे दो आया है। फॉलो ऑफ ई डैश में भी वही सेम, एंड फॉलो ऑफ टी में आया है प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर।
So likewise, for every production, you will have to calculate like this follow function and first function. Okay. So ये एक ही दिन में नहीं होगा. I can understand. So you will practice. I will give you some more example, and then you can you will be able to solve every example by following these rules. Okay. इसमें डाउट जरूर होगा. I know that. बट दिवाली के बाद जब कॉलेज खुलेगा तब हम लोग इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे विद दिस रूल सेट. ओके. So don't worry about it. I'm just taking your attendance and leaving you for the day. And आप लोग क्या करना कि कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास बुक होगा तो उस एग्जाम्पल से आप लोग रूल को मिलाने की कोशिश करना कि एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो रूल मैंने आज बताया है वो कैसे अप्लाई हो रहा है वो जस्ट देख के रखना सो दैट दिवाली के बाद जब खुलेगा सो वी कैन प्रैक्टिस इट. ओके. टेकिंग योर अटेंडेंस. And we'll again meet after Diwali and we'll practice this by many examples. Because ये question आपको parsing